Good evening and warm welcome to all the participants who have joined today. We already have our iconic N.K. Chaudhary Saab here. Please join me in welcoming. Welcome, sir, to this leadership conversation. Thank you so much for agreeing to join us. I am very happy that you have given us some time for this leadership talk. So, ladies and gentlemen, let us stay glued. I will quickly finish the introduction to a great personality. I'll try and see how much we can take in. And after that, we will have opening remarks from Sir. So let me share my screen. As I mentioned, these are Wise Views Leadership Conversations. And this is the 165th session. We are hosting Mr. Nand Kishore Chaudhary, the iconic founder of Jaipur Rugs. And we will be talking about weaving social change, how the Jaipur Rugs has woven the social change as part of this conversation. After this intro, sir will talk about 20-25 minutes and then we'll have Q&A. And here is the founder, his profile I am privileged to share. Shri Nand Kishore Chaudhary, a globally acclaimed social entrepreneur, is the founder of Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs, and is often referred to as Gandhi of the carpet industry. With just 2 looms and 9 artisans in 1978, his journey 4 decades later stands at Jaipur Rugs, becoming a global social enterprise exporting to over 60 countries while providing sustainable livelihood to 40,000 artisans in 600 remote villages across 5 states in India, out of which 80% of them are women. This is amazing. Management guru C.K. Prahalad featured his revolutionary business philosophy in his globally acclaimed book, The Fortune at the Bottom of Pyramid, which is a very, very popular book, a game changer. Mr. Chaudhary has also been termed as father of modern social enterprises by Professor Jagdish Seth, another popular professor and management teacher from Emory University, USA. Professor Seth said Jaipur Rugs has become a role model that business can serve society and at the same time can be a capitalistic institution. In 2019, Mr. Professor Raj Sisodia featured Jaipur Rugs and Mr. N.K. Chaudhary in his book, The Healing Organization for the Power of Innocence. The book highly celebrated Mr. Chaudhary's steps towards healing the customers and transforming the society with love. He has won several awards, including the E&Y Entrepreneur of the Year Award, CNBC TV 18 Emerging India Award, Social Impact Award conferred by former President Shri Pranab Mukherjee, among others. His mission, as a simple man, he is devoted to the Indian hand-knotted rug industry with an aim to position it rightly in the world and to empower its real owner and creator, that is the Indian weaver. His philosophy of totality, inclusion, and for-profit solutions to society are widely discussed. So this is in summary his profile. I welcome him once again. Thank you very much, sir. I will also take this opportunity to introduce my esteemed colleague, Dr. R. Prasad. He is the Senior Director at Academic Wing of ICFI Group. He brings 3 decades of rich experience to the table, and he holds a BTech from IIT Bombay and PGDM from IIM Kolkata. Welcome, Professor Prasad. Thank you so much for joining us this evening. Without much ado, now we will save all the time for Sir Nand Kishore Saab to open his talk. Thank you once again, sir, and welcome. नमस्ते जी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आर प्रसाद और सुधाकर राव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मुझे बातचीत करने का मौका प्रदान किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। और आज मैं जो अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मुझे जो अनुभव है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। और इसके बाद ही मेरी रियल एजुकेशन की शुरुआत हुई। आज के 46 साल पहले मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा है कि शायद यहाँ मुझे ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिल गई थी। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो फिर मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है।
तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ और नेचर में समय गुजारना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त इंडिया में जो कारपेट बनते थे एक्सपोर्ट में उनकी बहुत गहरी मांग थी। तो मैंने निर्णय किया कि मैं इसी धंधे से अपने करियर की शुरुआत करूं, तो मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए नए गांवों में जाने का मौका मिलेगा और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा दे वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो यह सोच के मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपये का लोन लिया और 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी जिससे मैं वीवरों के घर पे आया जाया करता था और इस कारपेट के धंधे की शुरुआत की। और ये लूमें मैंने अपने घर में ही लगाई थी चूरू में। जब ये 2 लूम की मैंने शुरुआत की तो उसमें काम करने वाले ज्यादातर आदमी थे, मैन थे। तो मैं देखता था वो समय से काम नहीं करते थे, क्वालिटी सही नहीं बनाते थे, काफी परेशानियां पैदा करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ वुमेन की शुरुआत हुई तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि वुमेन ज्यादा डिसिप्लिन है, अच्छी क्वालिटी बनाती है। तो तब से लेके आज तक हमने केवल वुमेन पे ही फोकस किया। और ये 2 लूम शुरू करने के बाद में जो सबसे पहला चैलेंज आया दैट वाज फ्रॉम माय ओन फैमिली मेंबर। परिवार के सारे लोग बोले कि आप जिन लोगों से काम करते हैं ये तो अनटचेबल है, अछूत जाति के लोग हैं, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले हम मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और मैं चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में या गैदरिंग में जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए। और मुझे यह भी समझ में आया कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, जिस समाज का हिस्सा हूँ, इट इज हाईली हिपोक्रेटिक एंड द होल सोसाइटी एंड फैमिली इज ड्रिवन बाय द कंडीशनिंग। मैंने देखा कि हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि लोग घर पे कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेले होते तो और ही कुछ होते हैं। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी मेरा जो लगाव था, जुड़ाव था, वो कारपेट वीविंग और वीवर से बहुत ज्यादा था। तो दोपहर का खाना भी मैं उन वीवरों के साथ ही बैठ के खाया करता था। और मेरा जो वीवर और वीविंग के प्रति लव था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने कुल मिलाकर 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद मैंने अपना खुद एक्सपोर्ट करने की सोची। फिर मैं जयपुर आया और 3 साल मैं जयपुर में रहा और अपने भाई के साथ मिलके मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। लेकिन उस वक्त इंडियन कारपेट की विदेश में बहुत ज्यादा मांग थी। तो उस मांग को पूरा करने के लिए मुझे और वीवर चाहिए थे। तो उस वक्त मैं गुजरात के एक ऐसे ट्राइबल एरिया में गया जहाँ पर गुजरात सरकार ये कोशिश कर रही थी कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले और वो कारपेट वीविंग की उनको ट्रेनिंग भी दे रही थी। तो ये जो एरिया है नौसारी, डांग और वलसाड डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। तो जब पहले दिन उस एरिया में गया तो लोकल लोगों ने मेरे को बोला कि ये जो ट्राइबल लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर। तो आप यहाँ पर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो दे कैन डैमेज यू, दे कैन डैमेज योर बिजनेस। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था जो पेंटेड वॉल्स ऑन शेखावाटी का बहुत गहरा रिसर्चर था। तो वो हर साल 4-5 महीने के लिए चूरू में आता था और शाम का जनरली वो खाना मेरे घर पे ही खाया करता था। तो जब कोई समस्या आती तो हम उससे सलाह लिया करते थे क्योंकि उसके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर था। तो मैंने उसको पूछा कि इस आदिवासी एरिया में मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, इसलिए बाहर के आदमी को ये विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। तो इफ यू डील विद देम लव, एम्पैथी एंड कंपैशन, दैट विल योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैंने उस एरिया में कामकाज की शुरुआत की और मैंने देखा कि 3 साल बाद दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं वीवरों से मिलने के लिए गांव में जाता था तो उनके घर वाले मुझे बाहर खड़े होकर इंतजार किया करते थे। और उस एरिया में मैं कुल मिला के 8 साल तक रहा और 8 साल में मैंने 15,000 ट्राइबल लोगों को ये कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और उस वक्त कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, लैंडलाइन भी नहीं होती थी। तो मैंने सरकार से स्पेशल परमिशन लेके एक रिपीटर स्टेशन ऊंची पहाड़ी पे लगाया और वॉकी टॉकी के थ्रू में पूरी एरिया में काम करता था। इस दौरान मेरे 3 बेटियां हुई और हमारे समाज में जब किसी औरत के पहले 3 बेटियां होती है
तो परिवार के लोग उसको, औरत को हीन नजरों से देखते हैं। तो वाइफ बड़ी परेशान रहती थी। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि बेटियां होने से प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उस अंग्रेज दोस्त को पूछा कि इस समस्या का हल कैसे निकालें। तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारे समाज में, परिवार में जो बेटे बेटियों में जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बेटे स्पॉइल्ड हो जाते हैं और बेटियां पीछे रह जाती है। अब तुम बड़े लकी हो कि तुम्हारे 3 बेटियां हैं, कि वुमेन आर मोर एफिशिएंट एंड मोर रिसेप्टिव। तो मैंने और वाइफ ने उनकी बात को मान के बेटियों को अच्छी तरह पाला पोसा और उनको, सभी बेटियों को यूएसए पढ़ने के लिए भेजा। जब मेरी पहली बेटी आशा, जब उसने सोचा यूएसए में पढ़ने का, तो उसने मेरे को पूछा कि पापा आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने उसको बताया कि देखो, मुझे वीविंग में और वीवर के साथ खूब मजा आता है। तो जब तुम यूएसए जा रही हो तो एक रिच बाप की बेटी की तरह मत जाना। यू शुड गो एज ए डॉटर ऑफ ए वीवर। और मेरा जो एंड कंज्यूमर है वो अमेरिका में रहता है और मैं अपने एंड कंज्यूमर से कभी भी नहीं मिला। तो जब तुम यूएस में पढ़ रही हो तो तुम ये देखो कि वहां की जो वुमेन है, जो मेरे कारपेट की एंड कंज्यूमर है, उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है, वो घर को कैसे डेकोरेट करती है। और तो जब तुम वापस पढ़ के आओ, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। और शायद इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखा, जिसकी वजह से वो वहां से पढ़ाई करने के बाद जब इंडिया आए तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना पाए, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए। इस दौरान जब मैं विलेजेस में जाता था तो मैं देखता था कि ये जो महिलाएं, जिनके परिवार की इतनी सीमित इनकम है और उनके परिवार में 8 से 12 लोग होते हैं, तो परिवार की हेल्थ को मैनेज करती है, एजुकेशन को मैनेज करती है, खाने को मैनेज करती है, एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट। प्रोबेबली दे आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर द मोस्ट वाइज पर्सन इन द वर्ल्ड। 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। और जयपुर कंपनी की शुरुआत की तो पहले 3 साल में मुझे बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो 3 साल में मैंने जो कमाया था वो ज्यादातर पैसा खो दिया मैंने, और मुझे लगा कि अब शायद इस बिजनेस को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने एक बार इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा मैंने क्या गलती की, ऐसा मैंने क्या किया जिसको मैं नहीं जानता था। तो मुझे ये पता चला कि कारपेट बनाने में मेरा बहुत अच्छा नाम था, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। तो आई हैव द फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और जब इंटरनेट पे रिसर्च की तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। तो मैं माइक्रो मैनेज बहुत करता था, हर डिसीजन में, हर एक्शन में मैं खुद आ जाया करता था। आई वॉज एवरीवेयर, सो आई वॉज लाइक ए आइस क्यूब। मैं एक बर्फ का गोला बन चुका था। तो मुझे उस बर्फ को पिघला के आई मस्ट कन्वर्ट माई सेल्फ एज ए वाटर, जिससे मैं किसी भी बर्तन में डालूं तो शेप ले सकूं। और मैंने जाना कि आज तक मैंने गांव में काम किया है और अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है। तो ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे बहुत सारे नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, अपनी लीडरशिप स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया, और मेरी एक सीखने की जर्नी शुरुआत हुई जो आज जयपुर को यहाँ पर लेके गई। इस दौरान मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो एक एक बच्चा इंडिया वापस आने लगा और बिजनेस ज्वाइन करने लगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जब बिजनेस ज्वाइन करती है तो दे हैव ए ग्लोबल एक्सपोजर, और हर बच्चे में एक अलग अलग तरह की स्किल थी जो इस बिजनेस के लिए चाहिए थी। तो बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो उस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए मैंने एक्सपीरियंस और फ्रेशर एजुकेटेड प्रोफेशनल रखे, बट एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। क्योंकि प्रोफेशनल रखने का मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था, तब मुझे समझ में आया कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस develops ego. Practitioners sometimes have the skills without having the knowledge. One can get lost in knowledge without knowing anything about the reality. तो हमने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हमने हमारे प्रोफेशनल्स को बताया कि कारपेट इंडस्ट्री के जितने भी जो प्रोसेसेस हैं उन पे काम करने वाले ज्यादातर लोग या तो बिना पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, बट दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस।
दे अंडरस्टैंड द बिजनेस। सो आप उनसे प्रोसेस सीखिए, बिजनेस के बारे में सीखिए। और मैंने भी जिम्मेदारी ली कि मैं उन लोगों को कोच कर पाऊं। और उस वक्त हमने एक मैनेजमेंट फिलोसफी डेवलप की, फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, द मोर आई लूज माई सेल्फ द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका था कि जो जानने का वहम है, नॉलेज का जो वहम है और जो ईगो है, ये सारी तकलीफों की मूल जड़ है। 2004 में एक बार मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और उस वक्त मेरे 500 बच्चे बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे, तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था और हर साल में 3 से 4 हजार नए व्यूवर्स को और हेड ऑफिस में स्टाफ को शामिल करता जा रहा था। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम कल मेरे को भी आने वाली है, तो इससे पहले कि प्रॉब्लम आए मुझे उसका हल निकाल लेना जरूरी है। तो यह सोच के मैंने जयपुर एक फाउंडेशन बनाया। और फाउंडेशन बनाने का ही पर्पस था कि कैसे जो व्यूवर्स हैं, जो आर्टिजन है, जिनके साथ में ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, उनकी लाइफ को मैं कैसे टच करूं। और लाइफ को टच करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनके माइंडसेट को चेंज करना। तो जयपुर फाउंडेशन ने ऐसे बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए जिससे उनका माइंडसेट चेंज हुआ सारी आर्टिजन का। और पूरी जो आर्टिजन कम्युनिटी थी दैट कन्वर्टेड इनटू ए फैमिली। और जब उनका माइंडसेट चेंज हुआ तो दे बिकेम वेरी रिसेप्टिव टू द कस्टमर नीड्स, जिसकी वजह से हम लोग जीरो डिफेक्ट, जीरो वेस्टेज, 100% ऑन टाइम डिलीवरी कारपेट बना पाते हैं। और फाउंडेशन ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए, स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन करना, उनकी लीडरशिप को डेवलप करना, और सरकार की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उन स्कीम से उनको जोड़ना। 2008 में प्रोफेसर सीके प्रहलाद ने जयपुर की एक केस स्टडी की, जो उनकी किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। प्रोफेसर सीके प्रहलाद की किताब केस स्टडी पढ़ने के बाद में हमें समझ में आया कि व्हाट वी हैव डन राइट। द फर्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। कारपेट इंडस्ट्री में 60 प्रोसेसेस हैं, तो ज्यादातर प्रोसेस आइदर इज मैनेज्ड बाय अस और हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अस। दूसरा, डायरेक्ट कनेक्शन विद द व्यूअर्स। मैंने जब से शुरू किया तब से लेकर हम लोग डायरेक्ट आर्टिजन के साथ ही काम करते हैं, जबकि पूरी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करती है। शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर गांव में एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है। और तीसरा था एवरीथिंग एट द डोर स्टेप ऑफ अवर आर्टिजन। सारा रॉ मटेरियल, सारी ट्रेनिंग हम एक आर्टिजन के घर पे ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस महिला को अपने घर के बाहर नहीं आना पड़ता। 2014 में हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया हमने मनचाहा प्रोजेक्ट। मनचाहा प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमने हमारे व्यूवर को फ्रीडम दी कि आप अपने मन पसंद के डिजाइन बनाइए, आपके हार्ट में जो डिजाइन चलता है उसको आप बनाइए। इस प्रोजेक्ट की कैसे शुरुआत हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बेटी कविता जब गांव में मेरे साथ जाती थी, वो डिजाइनर है, तो मेरे को बोलती थी कि पापा इसमें तो कुछ महिलाएं मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। तो मैं उसको बोलता था तुम्हारे से ये महिलाएं क्रिएटिव कैसे हो सकती है, मैंने तुम्हें यूएस में पढ़ाया है एंड आई स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर टू गेट यू स्टडी इन द यूएस, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। फिर उसने कुछ महिलाओं को चुना और उनको फ्रीडम दी कि आप अपने खुद के डिजाइन बनाइए। अभी तक उनको इस प्रोजेक्ट को 22 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें मोस्टली अवार्ड ग्लोबल है। 2017 में विमला देवी, जो कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गई, अपने गांव के बाहर भी ज्यादा नहीं गई, उसने अपनी डिजाइन का जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता और वो बेटी के साथ जर्मनी अवार्ड लेने के लिए गई। मैंने इन महिलाओं में इंसान देखा और जो बेटी थी उसने उनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा, जिसको हमारे सारे आर्टिजन ने प्रूव करके दिखाया। 2019 में हमने राजस्थान के 5 जिलों में एक प्रोग्राम शुरू किया, उसको नाम हमने दिया फ्रीडम मनचाहा प्रोजेक्ट। और इनमेट्स को भी हमने ये सुविधा दी कि आप अपनी डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए। अब मैं जयपुर के फ्यूचर विजन की बात आपसे करना चाहूंगा कि बेन एंड कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, द डीपर यू गो इनटू योर कोर यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। तो बेन एंड कंपनी ने हमारे कोर स्टेटमेंट को, हु वी आर स्टेटमेंट को डिजाइन किया था और उन्होंने हमें कोच भी किया
तो अभी हम उनकी सहायता से बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन बनाने जा रहे हैं। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब ये है कि जयपुर के जो आर्टिजन है, दोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड विल कनेक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। इससे उनकी डिग्निटी मेनी टाइम्स हो जाएगी और उनकी इनकम मेनी टाइम्स हो जाएगी। 2019 में राज सिसोदिया, जिन्होंने यूएस में कॉन्शस कैपिटलिज्म की शुरुआत की थी, उन्होंने किताब लिखी द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी, हील द कस्टमर। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली, जिसमें पहली केस स्टडी उनकी जयपुर की है कि हाउ जयपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारी जो टैग लाइन है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज एंड वी सेल एक्सपीरियंसेस। जब कोई भी कस्टमर हमारा कारपेट खरीदता है तो जो आर्टिजन की ब्लेसिंग है वो हमारे एंड कंज्यूमर को मिलती है, और एंड कंज्यूमर को उस ब्लेसिंग से उनके घर में जो हीलिंग और प्रोस्पेरिटी और वार्मथ आती है वो हम वापस आर्टिजन के पास भेजते हैं। इट कंप्लीट द सर्किल, जिसको हम टोटलिटी बोलते हैं। अपनी बात को बंद करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए और बोले रोल नंबर किसका है, खड़े हो। तो वो रोल नंबर मेरा था। फिर मैंने सोचा आज मेरे को क्या पनिशमेंट देंगे, मैं तो होमवर्क तो टाइम से करता हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और सबको दिखाया कि देखिए इसने आंसर क्या दिया है। सवाल था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और मैंने जो जवाब दिया वो था बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, it is the creator and preserver of civilization. Business is next to love, it is the creator and preserver of civilization. तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। थैंक यू। Amazing stuff, amazing journey that you have explained over the last several decades. Although आपने संक्षिप्त में बताया है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। हर एक फेज ऑफ बिजनेस में आपने बताई हमको। I think it's a fantastic story. Wish we had more time to listen to you in terms of understanding details of every phase and every decision that you took. But in summary, I have this good feeling of listening to you that you have completely dedicated yourself passionately, emotionally, with love and care into this business, and therefore this business has turned out to be what it is today. Much before anybody in this country has, in terms of business entities or magazines or media, has recognized what Jaipur Rugs is, I think management gurus and strategy advisors from outside have done that, have given that recognition, and they placed it as one of the game changers in weaving social change, in incorporating cutting edge management principles. But मेरे ख्याल से जो लगता है कि the story of Jaipur Rugs is a deep-rooted, passionate, and strategic work aimed at changing this country, which is the most needed aspect of converting skilled manpower, woman power, especially woman power in this case, into globally acclaimed artisans whose products are touching the homes and happiness of several individuals around the world in so many countries that this product is being exported to. I think what was rejected by society in terms of a esteem, in terms of a caste, or in terms of being untouchables, in terms of women who were not given the opportunity to rise, I think you have chosen the most difficult path. Anybody can imagine is in business is to choose which is feasible. But here, I think you have chosen the most difficult one, most difficult segment, and started and rose above those difficulties of social acceptance, business community acceptance, your own family or extended family not accepting. I think at any stage one could have given up. At any stage one could have given up if it was not driven by genuine love and empathy for them. I think right from the beginning for 4 decades and even now, the story that you have told us is full of interventions and coming up with new strategies, strategies that one can talk about and apply elsewhere, provided it is driven by not primarily the intent for money, but driven primarily with love and affection.
I think genuine love and affection will bring genuine love and affection from the people who are working with us. I think this is a Jita Jagta example of how love can be invested into a business and how business can be pursued with love by everyone who are part of it, including the customers, including the people, those talented and skilled artisans and women who are working with you. I think it's a wonderful example and a case study that all of us can draw our lessons from this. I'm very happy, sir, you have taken time to explain these details so beautifully in very, very simple language. And I'm quite impressed. I'm quite impressed. The impact that it is making on people is something very difficult for us to fathom. But I think we should go there and see in those villages what is happening. When you said training and raw material and everything at the doorstep, which means कोई भी हर्डिल नहीं खड़ा कर दिया आप उनके सामने, क्योंकि इन विमेन को हमारे स्कीम में लेके आना है तो उनके हर्डिल्स को हटाना पड़ेगा फर्स्ट थिंग. I think that's what you have worked on. This is one of the best management principles that you have adopted. Lot of hard work, and you have rallied your entire family. They also joined the family business with so much of love and care. It is very difficult, sir. आजकल के बच्चे, they have their own business ideas. They will go into other businesses. But I think they have seen your passion. They have come and joined. So it is only fortified. It has become strong as a proposition, as a believable proposition. It is working at different levels of your family, and therefore it is working at their families also. The artisans and their families also, it's working, and it is continuing to work over several years, several decades. I think it's a great phenomenon. And the last point which I want to say before we start the Q&A, and Professor Prasad is waiting, is that as a lot of people have written earlier, it is so heartening to note that for-profit business रखते हुए, for-profit business के जरिए, love and affection के माध्यम से, I think you have created a lasting business, a business which it can sustain on itself, which we can continue to do over several generations as well. I think that is the biggest contribution, and that is the biggest takeaway that I can take. Thank you so much, sir. Thank you so much for this. Sir, now we will start Q&A with your permission. I'll request Professor Prasad to begin the first cluster. I will come back for the second cluster. Over to you, Professor Prasad, and thank you for waiting. Thank you, Professor Rao. Many times when we were discussing amongst ourselves, Professor Rao and myself, we have reiterated the need to have more entrepreneurs, especially in India, who take a more holistic view. A lot of people, most of the country goes after money, profits, economics. At the same time, we keep hearing about the gaps of various sorts. You have talked about some gaps. But what I have found from what you have spoken till now, and it is layer by layer. I mean, you have started with something, then you have learned from that, then you added something else. I have found that you have always taken a spiral approach. You have taken a rounded approach, a holistic approach, and it is going up and up. Right. It is not leaving gaps in the way it needs to be looked at, keeping in view that this is what the country needs. So that is one thing, sir. The other thing which came to my mind is that you have applied a lot of principles which are taught to us from our scriptures. You are applying it. I can see that your Kurukshetra is of real life. I mean, it is not a war, but you are trying to do it in real life. I can see that in the way that you have explained it. Our scriptures do say, all scriptures do say that love and compassion is at the highest level. And you have tried to see how you can bring it into life, into your product, in fact, into your full value chain. The way you have messaged that this is coming with family blessings, it is coming with experiences, it is coming with stories. It's a very nice way of projecting that. So if you're able to do that in your messaging, and given the kind of measures that you've taken, I think there's quite a bit to learn on this kind of model. It's a very unique kind of a model. And I'm sure that it can be done in other areas also, where there is so much of need for both love and compassion. Thank you, sir. With that, I will start the first question. Sir, you have outlined your journey in terms of how you have developed this philosophy, because you have done all this very holistically. You have got the economic angle, you have got the social angle, you have got the spiritual thread. So you have threaded this together. In fact, you have worn a carpet. You put that in the title also.
but your business is actually weaving. There is a business of weaving, and the business is also woven. I can see that in the way it is getting done. So what is the philosophy? What are the values which have driven you, which keep improving this and give us better and better as it goes forward? Can you throw some light on that? राइट जी, जरूर जरूर। देखिए, जो बिजनेस है ना, व्हाट आई लर्नड इन माय लाइफ इज बिजनेस इज इनसाइड आउट। जनरली जो लोग बिजनेस का जो अर्थ लेते हैं वो आउटसाइड इन लेते हैं। तो जितना एक जो बिजनेस लीडर है, एक फाउंडर है, वो जितना अपने आप को इवोल्व करता जाएगा और जितनी अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता जाएगा, उतना ही जो अभी आपने जो होलिस्टिक व्यू की बातचीत की, वो उसको समझ में आता जाएगा। तो मेरा यही है कि बिजनेस इज ऑलवेज इनसाइड आउट। आपको इवोल्व करना है, to evolve your business you have to evolve yourself, so listen yourself। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपने अंदर से जो आवाज आती है उस पे भरोसा कीजिए। क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन ही विरोध में गया। लोग स्टिल अपोज करते हैं। मैं जिस तरह की लव की बातें करता हूँ, सारे बिजनेसमैन बोलते थे मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे इस तरह की बातें करते हो। तो बस I listened myself, I trusted myself. Excellent, sir. In one line, you have given us a very, very fundamental principle, and that is that it starts with the leader. And if the leader evolves, then the business will be more holistic, and the business will also evolve, and there will be all elements of life Right. and divine in the business. Not just life, but also the divine in the business. It is a very challenging assignment, sir. You have demonstrated it. And I'm sure that those who are around you would have been influenced and would have taken the same path. Thank you very much, sir, for such a wonderful response. Sir, second is I go back to this the book called The Healing Organization. So it is said that a healing organization is one that heals employees, customers, communities, and other stakeholders. In your mind, how have you envisioned healing? What does healing mean to you? That is what I suppose will get manifested in how you want to implement it. So can you throw some light on that, sir? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये जो हीलिंग शब्द है, ये सारी चीजों की मुझे मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं थी ये सब क्या होता है। धीरे धीरे जैसे जयपुर की केस स्टडी होती गई, मैनेजमेंट के लोगों से मैं मिलता गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। 3 साल पहले मुझे ये समझ में आया कि हीलिंग का ना जीवन में, बिजनेस में, सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, हीलिंग का मतलब ये है कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको वो धीरे धीरे बाहर जितनी अपनी यात्रा होती है, जितना ईगो, ग्रीड, पावर से ड्रिवन होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस श्रिंक होती जाती है। जितना एक आदमी एम्बिशियस होगा उसकी कॉन्शियसनेस उतनी श्रिंक होती जाएगी, तो वो अपना जो पैशन है, अपनी जो स्पिरिट है, उसको वो भूल जाएगा। तो पिछले 3 साल में मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी जो हीलिंग के प्रिंसिपल थे उन पे काम किया, और जो बहुत अच्छे कोचेस थे इंडिया के, उन कोचेस से मैंने काफी कोचिंग ली। तो हीलिंग का मुख्य मतलब ये है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो आप जजमेंट करते हैं, उससे आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है। बिलीफ सिस्टम से आपका ईगो बनता है, फिर वो आपका सर्वाइवल किट बन जाता है। And when you judge somebody, something, you invite the suffering. तो जो सफरिंग्स है मेरे जीवन में, जो समस्याएं मेरे जीवन में है, परिवार में है, बिजनेस में है, उनको मैं अपने बिलीफ सिस्टम को डिसॉल्व करके कैसे उनको मैं दूर करूं, उसका नाम हीलिंग है। और 3 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे खुद पे मतलब। Sir, your approach is very fundamental. अच्छा, आपने बहुत आसानी से डिफाइन कर दिया। जो the word may have been given by the professor, but you have been having it inside. I mean, it has been subtle. It is not open. The professor gave it a word. Now you have made it open. Now you have made it defined. You have studied based on that and you have made it open. And I think the definition you have given is outstanding. You have taken from all the religions and spiritual angles of the world, and I think they are all present in what you have said. And starting from the Bhagavad Gita, I mean, everything which is mentioned here is very practical, though it sounds theoretical. It sounds very theoretical,
but you have shown that this is doable. Just now Right. you have explained that you took 3 years, you have approached, you have understood, you are reflecting on your life experiences, you are trying to convert it to use to discover yourself, to evolve your consciousness, to reduce the elements which retard or pull this consciousness in another direction and move it in the direction that you want. I think, sir, that is also a very wonderful response, equally wonderful response, if not better response. I'll take it to the third question, sir. And this also seems to be integral to the way you have built your business. The woman artisan seems to be the key person in your scheme of things. How do you develop the system, sir? I mean, how do you attract? How do you identify? How do you recruit and retain? And how do you develop the system consciousness that you have for your organization based on this? Can you give some हाँ thought जी, to this here? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जैसे किसी भी, जब हमें और ज्यादा व्यूवर की जरूरत होती है तो हम किसी भी नए नए गांव में जाते हैं, और नए गांव में जाके हम विलेज वालों की मीटिंग करते हैं, तो उसमें कभी 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग आते हैं। लेकिन उस वक्त हमें ये मालूम रहता है कि अगर 100 लोग आए हैं तो उसमें 2 या 4 लोग ही ऐसे होंगे कि दे बिलीव व्हाट वी बिलीव। तो जयपुर का विजन है, मिशन है, पर्पज है, वैल्यूज है, उसमें वो विश्वास करते हैं। तो हमारे जितने भी जो आर्टिजन है, हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन्हीं आर्टिजन को साथ में रखते हैं जो उस वैल्यूज में विश्वास करते हैं और उस विजन में, मिशन में विश्वास करते हैं। और अब तो धीरे धीरे क्या है, एक ऐसा ना एक ऑर्गेनिक सिस्टम बन गया कि कोई भी ऐसा आदमी आ जाता है जो मतलब टॉक्सिक है या उसमें बिलीव नहीं करता, तो उसकी एंट्री मतलब उस सिस्टम में बड़ी मुश्किल है। So this is super. I mean, now you've taken it to another level. I'm remembered, when you're speaking, I'm remembered of the word satsang. You have, though that word is used in so many contexts, in work, in the workplace, you have given a definition to it. You have brought in how it can happen through values, because satsang basically is about values. Though, Right. people do many things, but you have actually implemented that with respect to your workplace. Fantastic, sir. I think this response takes the cake, and I think it is something which is extremely practical. Today we talk about it as purpose. People should believe in the same purpose. Are you having the same values? But I think you have demonstrated how it can actually be done. There's a lot to study just in this, sir. Just in this, I think cases can be written. Lots can be written in this. Thank you very much, sir. I'll take a pause at this stage. We are at 7:17. I'll give it back to Professor Rao. Thank you very much, Professor Prasad. I think the discussion is at a much deeper level, much more therapeutic level. I think जैसा हम ज्यादा सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही सीखने को मिलेगा. So ये जो टॉक है केवल एक ट्रेलर है. हम लोग आगे बढ़ के चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हैदराबाद आए या हमारे कैंपस आए और हमारे जो लीडरशिप टीम है और बच्चे हैं उनसे बात करें. जब मौका मिले, जब समय मिले तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तार से इसको बताना होगा और इसको एक्सपीरियंस करना होगा और एब्जॉर्ब करना चाहिए. ये कोई ऐसा टॉक नहीं है कि करने के लिए कुछ कर दिया है, नहीं. इसका नाम है वाइज व्यूज. आप जैसे लीडर, आप जैसे फाउंडर जो वाइज व्यूज लेकर के बिजनेस में इंटीग्रेट करके चलाते हैं और फेलियर को कन्वर्ट करते हैं, सक्सेस को कन्वर्ट करके इम्बाइब करवाते हैं, जीवन की एक शैली बन जाता है. इट बिकम्स अ लाइफस्टाइल, इट बिकम्स योर ओन टेम्पलेट ऑफ लाइफ. आई थिंक दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, एंड देयरफॉर I'm really enjoying this conversation, sir, and it is true to the name of Wise Views that we have titled this. I'm so thankful to you. I have one or two questions before I ask the audience to raise their hands. Audience may raise their hands, and I will open the mic for you. But before that, I have a couple of simple questions, sir. In your journey, you have explained many things. Of course, there is a paucity of time, but I want to ask a little more about how did you see any competition for you? It is not that business में competition नहीं होता है. And one of the professors from those consulting companies has said that the deeper you go into the core of your business, the more difficult you make it for the competition to copy you. Right. So that inimitable
इनिमिटेबिलिटी मतलब कॉपी करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसा ने आपने किया है। इस विषय को थोड़ा विस्तार से बताइएगा और थोड़ा डिस्क्राइब भी कीजिएगा कंपटीशन किस तरह का थी और आपने गेम कैसा चेंज कर दिया। अगर कंपटीशन फर्स्ट फ्लोर में होता है तो आप फोर्थ फ्लोर में कैसे गए जा चुके हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दुनिया में दो दो तरह की कंपनियां होती है। एक तो कंपैरिजन कंपनीज होती है, हम्म, कि कंपैरिजन कंपनी का मतलब है कि मैं इसलिए बड़ा हूं कि कोई दूसरा मेरे से छोटा है, तो दैट इज ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इट मींस यू डोंट हैव द सेल्फ स्टीम, यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ। एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव कंपनीज, दे आर बोर्न टू डाई। उनका एक लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद में वो बंद हो जाती है कंपनी। एक ग्रेट ग्रेट कंपनीज होती है जो पर्पस से ड्रिवन ड्रिवन होती है। तो मेरा देखिए, कंपटीशन के मामले में यही मानना है। मैं हमेशा एक एक बताता हूँ कि मेरा हमेशा कंपटीशन मेरे खुद से रहा, कि मैंने जो अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया या खुद मैंने जो किया, मैं अपने आप को इतना इवॉल्व करूं कि आई मस्ट कम्पीट विथ माई सेल्फ। मैं अपने रिकॉर्ड को खुद में तोड़ूं। मतलब जैसे मैंने बोला कि खुद को जितना एक आदमी इवॉल्व करता है, और आपको मैं ऐसी बहुत सारी कहानियां भी है मेरे पास कि कितने कॉम्पिटिटर थे जिन्होंने बोला कि हम चौधरी साहब का बिजनेस बंद करा देंगे, कंपनी को बंद करवा देंगे। कितने करोड़ों रुपए उन्होंने मतलब खर्चा किया, लोगों को बहकाया, लेकिन जितना उन्होंने बहकाया उतना ही में ज्यादा फेमस होता चला गया। क्योंकि तो मोस्टली जो कंपटीशन है वो हमेशा खुद से करना करना चाहिए। लेकिन ये है कि कॉम्पिटिटर जो अपने जितने भी हैं उनसे सीखना जरूर चाहिए। हमारी जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं दुनिया में, हम कंटिन्यूस उनसे सीखते रहते हैं, जिसको फाउंडर मेंटेलिटी बोलते हैं। तो फाउंडर मेंटेलिटी पे बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो और देखिए, कोई भी जो ग्रेट कंपनी है, जितना ज्यादा एक लीडर का सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम पे वो काम काम करेगा, उतना ही वो इवोल्व होगा और उसको दुनिया में कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। Right, right. Amazing. Amazing. I think the standard that you are setting for yourself in redefining the competition is slightly different in the sense that it is you who have to evolve as a business, as an individual, and as a founder. And then it should be from that evolution, you will draw insights and make your business very, very strongly competing. But if like many organizations that are there in the world, if they are comparison oriented organizations, then they will lose out the steam. But if it is purpose driven organizations like yours, then it will sustain, it will last longer. I think wonderful. But I also want to know, sir, I also want to know what are the one or two things that you have learned from your competitors? One or two. नहीं, और अभी भी इस पे राव साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मतलब मुझे एक घटना याद आई आपके सवाल से, कि एक बार मैं एम्बर गया था, तो कारपेट का एक फेयर, डोमोटेक्स फेयर होता है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर होता है। तो एक यूरोपियन स्टॉल थी वहां पर, जिसमें कस्टमर की लाइन लगी हुई थी। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, जो डिजाइनर है कविता। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखिए, मेरी चेहरे पे थोड़ी चिंता का भाव था। तो उसने बोला, पापा आप परेशान कैसे हो रहे हो? मैंने कहा मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि ये जो यूरोपियंस हैं, ये डिजाइन में इतने आगे होते हैं कि अपनी ये 1 रुपए का माल 3 रुपए में बेच रहा है, फिर भी लाइन लगी है। और इंडियन कंपनी इस लेवल पे क्यों नहीं आ पाती, ये मैं सोच रहा हूँ। तो बेटी ने बोला कि मतलब पापा, मैं इनसे आई विल लर्न फ्रॉम देम एंड गिव मी 3-4 years। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 3 साल में उनसे सीख के उसने ऐसी तैयारी की कि इंडिया में पहली बार डोमोटेक्स में जो डिजाइन कलेक्शन का अवार्ड है, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार उसने जीता। मतलब उसके बाद ऐसा कोई साल नहीं कि वहां से कोई अवार्ड नहीं मिलता है। तो यूरोपियन कंपनियों का एक अलग ढंग है, अमेरिकन कंपनियों का अलग ढंग है। इंडिया में भी ऐसे क्रिएटिव एक्सपोर्टर्स हैं जो यार्न की मिक्सिंग करके तरह तरह की यार्न बनाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत ओपन रहते हैं। सुपर सुपर सर, वेरी वेरी शार्प एग्जाम्पल आपने दिया है। आई थिंक योर कॉम्पिटिटर्स इन यूरोप, यू हैव लर्न्ड देयर डिजाइन एक्सलेंस
and then taken back the leaf into incorporating it in your own design excellence. Your daughter has हाँ uh, जी, हाँ जी, your daughter has learned from them and spearheaded bringing design excellence, and therefore, of course, that is also awarded. But this is one very clear example of how you learned from your competition. And I'm sure like this, there are many examples of keeping your eyes and ears open, like your founder's mentality, learning from them. I think right. it has helped. बढ़िया सर, सुन के बहुत अच्छा लगा है. Very ठीक है good. जी, Fulfilling. It's a fulfilling experience of listening to, these things from you. अच्छा I will, जी. I will go to the next question. What is your take, or what is your plan or methodology for scaling up? I think in your business itself, over several decades, the base of artisans has gone several fold up. Many times it has been increased. And in terms of business, from the other side, that is consumption, sales, and number of cities and countries also has gone up drastically. What was the principle that you were using in scaling up of the business? Or is it the same kind of principle that everyone uses? Second, आगे जाकर के स्केलिंग अप और भी हो जाएगी. व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? ये स्केलिंग अप के ऊपर आपका रेस्पॉन्स सीखना चाहता हूँ. हाँ, देखिए स्केलिंग में एक तो हमने जैसे हमारा जो हु वी आर स्टेटमेंट है, हमारा जो कोर पर्पज है, तो हम वो ही बिजनेस में रहेंगे जिसमें हाथ से काम होता है, जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए और उस काम से एक जो बनाने वाले की जिंदगी में कुछ फर्क ला पाए. तो अभी जो स्केलिंग के लिए हमारे जो आर्टिजन है, जैसे मैंने बताया, उनको आर्टिस्ट बनाना और उनकी क्रिएटिविटी को इस लेवल पे लेके जाना कि दे कैन क्रिएट द गैलरी पीसेस, दे कैन क्रिएट द म्यूजियम पीसेस, और वो इनोवेशन कर सके, और जो कस्टमर का ड्रीम है और जो आर्टिजन का ड्रीम है उसको वो एक साथ व्यू कर सके. तो हमारा जो लग्जरी मार्केट का सेगमेंट है उसमें हम लोग अभी और डीपर जाना चाह रहे हैं. और दूसरा, हमने बिजनेस को स्केल करने के लिए हमने करीब 10 साल पहले रिटेल शुरू किया था. तो तब तक हमारा एडेंट प्रिंट एक्सपोर्ट ही था. हम एक सिंगल कारपेट भी इंडिया में नहीं बेचते थे. और अभी करीब जब इंडिया में हमने B2C शुरू किया, अभी करीब हमारा 40% जो सेल है वो इंडियन डायरेक्ट B2C कस्टमर से आती है, आइदर ऑन ई-कॉमर्स और B2C. तो हम B2C को बढ़ा के और हम लोग इस बिजनेस को स्केल करेंगे. Amazing, sir. Amazing. I think the way to move forward is to scale up in terms of B2C by staying focused and staying invested in B2C through e-com or non-e-com, but B2C is what you wanted to do. I think the founding principle behind the scaling is to match the aspirations of the artisan with the dreams of the customers. I think that's Right. a wonderful thing that you mentioned, sir. I think that's where you are creating a new segment, a luxury segment, and then a lot of the luxury segment will be fueled by this principle of matching the customer dreams with the artisans' aspirations, and that is Right. taking that level differently. Yes, of course, you are bringing you are making a huge difference to their lives. Harping on creativity, you are bringing a huge difference to their lives, and that will be a few notches above what others can try. I think they will stay with you, or they will stay with this project and this work for a longer time to come. Sir, having said that, is it similar now, or is it difficult to engage new generation of artisans, new generation of weavers? How is that phase going on? Because this will have to continue. Old people will continue, sometimes disengage, and then next generation will have to take it up. How is our plan? What is the reality currently? Okay, just give us some insight into engaging the next gen weavers. देखिए, इंडिया में भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो ज्यादातर हाथ से जितने भी जो काम होते थे तो आदमी का पैशन खोता जा रहा है. वो ज्यादातर गांव के लोग भी शहरों की तरफ ही जा रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद में. तो अभी के हाथ से जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है उनमें नेक्स्ट जनरेशन के लोग करीब करीब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. लेकिन हमने क्या है कि इस पे काफी अच्छा काम किया कि एक जो आर्टिजन को एक इतनी इनकम मिले घर बैठ के, जितनी वो एक शहर में कमा सकता है,
दूसरा उसकी डिग्निटी कि दे मस्ट फील प्राउड, क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री ने सारे आर्टिजन को एक लेबर में कन्वर्ट कर दिया था, तो फिर उनको लेबर से आर्टिजन बनाया, अब आर्टिजन से आर्टिस्ट बनाने, तो उससे उनकी जो डिग्निटी है, तो हम हर साल ऐसे करीब 1500 से 2000 नए वीवर को तैयार करते हैं, जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ भी रही है और ये काम करती है, तो हमें जो सेकंड जनरेशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे जितने लोगों को, नए लोगों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरे देश में अभी जो सेकंड जनरेशन है करीब करीब इस तरह के कामों से दूर होती जा रही है, और करीब करीब ये सारी इंडस्ट्रियां डाइंग इंडस्ट्रियां हैं। Yes, I think it's a stark reality that next generation is disinterested in such activities. But I think you have the pipeline, you have the strategies to engage the next gen as well by targeting younger school children. And of course, the underlying principle once again is to lift the income levels and also lift up the dignity by Right. converting what was a labor to an artisan and an artisan to an artist to a high income earner and a celebrated designer as well. I think the value chain has been sufficiently taken up and it is enriched, and therefore more and more people are encouraged and incentivized to join. But there is a challenge, as we understand, as far as next gen is concerned. Amazing, sir. I think I will now give an opportunity to the members in the audience. My esteemed members in the audience, please raise your hand so that I can open the mic for you and you can directly talk to Sir about any question or clarifications that you may like to seek. I'm just waiting. When I came to Jaipur, sir, after listening to your story, and I've been studying about this thing for quite some time. But after listening to your story, अच्छा जी। I should meet you personally. But हमारे जो colleague है, Dr. Saini has given this connection, and I met you through him, and he was very impressed about what has happened in our university and how you have talked to the youngsters and all. I think this genuine interest to make some time for youngsters to pick up and learn this story, this is very good, sir. I really request you to continue to do it, although it is difficult, बिल्कुल जी। and continue to do it. I'll request now Professor Subhash Sharma to raise his question, if it is possible. Professor Subhash Sharma, गुड इवनिंग सर। good हाँ evening. जी। चौधरी साहब, हालांकि आपसे मुलाकात हो गई थी हमारे यूनिवर्सिटी में जब आप पधारे थे इंडक्शन में, अच्छा जी। और उस समय एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, क्योंकि आपने ये कहा था कि आपकी जो जर्नी है राजस्थान और गुजरात में ट्राइबल बेल्ट में भी आपने काफी काम किया। हाँ जी। मेरे को ये जानने की इच्छा है कि जब हम ट्राइबल बेल्ट की बात करते हैं तो वो हो सकता है आर्टिजन्स आर गुड, दे मे बी गुड एट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो आपने उनमें जो स्पार्क और एनर्जी डाली थी, कैसे हाँ जी। इंस्टिल करी थी कि वो आपके लिए, आपके हिसाब से एंड एज पर द डिमांड एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स, आपके लिए वो क्रिएटिविटी लेकर के आए? बिकॉज अभी तक हमने जो देखा है ट्राइबल बेल्ट्स का, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हाँ जी। हाँ जी। और वो जनरली किसी के कहे में भी नहीं आते। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने ये कार्य संभव कैसे किया, क्योंकि इट्स अ वेरी टीडियस एंड टफ टास्क आल्सो। देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये ट्राइबल पीपल है ना, ये जी, बहुत मतलब इनोसेंट है, ये ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं, तो चालाकी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप खुद क्या है, मतलब अगर आप में भी वो सेम इनोसेंसी है जो उनके अंदर है, तो दे रियली लाइक यू। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि शुरू में जब मैं आदिवासी एरिया में जाता था, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे बदमाश होते थे जो दारू दारू पीते थे, लोगों की पिटाई विटाई कर दिया करते थे, बदमाशियां करते थे। तो जब मैं उस एरिया में जाने लगा, लोग जब मेरे को पसंद करने लगे, तो उस तरह के जितने भी जो लोग थे वो रास्ते में मिलते थे, मेरे को भी रोकते थे, तो मैं उनसे बड़ी बातें किया करता था।
आधा घंटा उनकी बातों को सुनता करता था, तो वो भी मेरे धीरे धीरे दोस्त हो गए। लेकिन क्या वो टाइम थोड़ा दिन में घंटा 1.5 घंटा 8 घंटे में उनको भी देना पड़ता था मेरे को। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इतना मेरे को ट्रस्ट किया 2-3 साल बाद, कि जब मैं विलेज में जाता तो दारू पीने वाले उनके घर वाले उसको घर में बंद कर दिया करते थे कि आज भाई साहब आएंगे, मेरे को भाई साहब बोलते थे तो ये तंग करेगा उनको। सही है। अदरवाइज अमेजिंग स्टोरी सर, थैंक यू। Thank you, Dr. Sharma. Sir, that was again a wonderful level of patience that you had developed to even deal with adverse situations, people who are hooligans and trying to create some trouble. But I think you've earned trust with your sustained हाँ work जी, over a period of time, and that is what is the call of duty as an entrepreneur. I think we have seen many entrepreneurs on this platform also, different kinds of businesses, but this one is particularly very, very different, I must confess. That you have given us an opportunity to get an insight into. This is completely driven by principles which are centered around the person, but beneficial to a larger community. I think evolution of an individual that is the leader, which is directly impacting a larger community, and the ownership is transferred from here to there, and then it is sustained. It is made to last for a longer time. Amazing, sir. Amazing principles. पंकज शर्मा जी, आप कुछ बात करेंगे? आपने कुछ लिखा था इसलिए मैंने आपका नाम यहाँ पे रखा है। अगर आप बात करेंगे तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। In the meantime, what I will do is there is one more question I have. This is the last question from my side, sir. अभी लगभग आपका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, बोथ इंडिया और यूएस का फर्म्स मिला के, और इतने साल आप इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में आपने काम किया है, बहुत सारे हाउसेस और फैमिलीज और उनके प्राइड एंड डिग्निटी को टच किया है, बहुत डिफरेंस लेके आए हैं। दिस इज वेरी फुलफिलिंग टू वंस लाइफ टाइम, एक्चुअली स्पीकिंग। आगे जाकर के आपका क्या आउटलुक है, क्या आप क्या करेंगे नेक्स्ट? व्हाट इज श्री नंद किशोर चौधरी प्लानिंग टू डू इन द नेक्स्ट 3-4 years? Is my questions. देखिए, एक तो अभी हम हमारे बिजनेस को हाईली प्रोफेशनलाइज कर रहे हैं कि फैमिली मेंबर दे शुड वर्क एज ए बोर्ड मेंबर्स और राइट प्रोफेशनल इस बिजनेस को चलाएं। और मैं भी जो डे टू डे काम देखता हूँ उससे पूरा बहुत जल्दी, अभी हमने एक सीईओ भी लिए हैं तो बहुत जल्दी उनसे मैं बाहर आ रहा हूँ। और मेरा रोल एक चीफ मेंटर जैसा रोल तो बिजनेस के लिए होगा, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जो मैं फोकस करूंगा उसके बाद, और अभी मैंने शुरू भी कर दिया है, कि मैंने जो अपने जीवन में जो जाना तो एक ऐसी विजडम स्कूल बनाए, मतलब तो मैंने जो गलतियां की वो गलतियां दूसरे लोग नहीं करे, जो स्टार्टअप है, जो स्टूडेंट हैं, या जो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसे कि मतलब आप जीवन को कमा के भी पैसे कमा सकते हो, दोनों काम एक साथ कर सकते हो। तो इस तरह की एक विजडम, इस तरह की एक समझ शायद मैं लोगों को दे पाऊं, इस पे मैं ज्यादा काम करना चाहूंगा। हाँ। Amazing, sir. Very, very profound and clear plans that you have to transition the company from what it is currently to very, very professionalized business setup, taking more people and day-to-day activities you're going to take a break from while being the chief mentor. But one thing is interesting, that is the wisdom school. Wisdom school बनाएंगे तो many people will get the benefit of what you did not have, or many people did not have when they started. And with great difficulty, by going through ups and downs, only one picks up wisdom. Hard-earned wisdom actually works very well. But if that benefit of wisdom is helping youngsters also when they are beginning their businesses and any non-business entities as well, I think it will be hugely, hugely helpful. And that's a great thought of paying forward what you have learned from the ups and downs of your own business and business life. You are planning to institutionalize that and provide it in the form of wisdom school. My best wishes, and on behalf of ICFI, we would like to give you our purest best wishes so that it becomes a huge success. And if anything that we can do as a partner in small, humble way, we will be very happy to come forward, because हमने भी यहाँ पे से 40 साल गुजारी है, और 40 years में हायर एजुकेशन के लैंडस्केप में थोड़ा बहुत चेंजेस, न्यू इनिशिएटिव्स लेके आए हैं ऑल ओवर इंडिया. If we can associate with you in some other form, let us know, sir. We'll be very happy to make ourselves available at your service and contribute along with you to what is going to be useful to a large number of people. Amazing, sir. And
I will also assume at this point in time that you will give us more opportunities to interact with you. I will request you for your time to come to our campuses. And this is the story, and this is the India that we would like to know more about. There is nothing other than this. I think through these stories and through this experience, through these wisdom talks, I think we will get to know to the grassroots. As I said earlier, it's a deep-rooted strategies, learning from the biggest management gurus, but implementing at the lowest levels of the society where it matters. I think that is being a true patriot that you are. I am very, very happy that you are able to implement these things while still being a for-profit organization at such a scale with such an impact. We are very happy, delighted, sir, for your time. Thank you so much for spending this with us. Thank you, thank you, Ji. Thank you. On behalf of Professor Prasad and on behalf of entire ICFI and all the members who have joined today, I want to request you to, in case we have any questions, we will write to you. You can respond on email, sir, whenever it is possible and convenient. और आखिरी चीज है कि हम इस वीडियो को और इस सेशन समरी को आपको भेजेंगे और आप रिव्यू करके जब आप अप्रूव करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, वो ये हम अपलोड करेंगे हमारे वेबसाइट है, आर्काइव साइट्स, बिकॉज those people who missed today because of work pressure or because of time mismatch, they have the benefit of going back to it and learning from this amazing conversation that we've had. So we'll write to you, sir, and we'll seek your permission. Thank you. And I want to also wish everybody in the Jaipur Rugs team who have coordinated with us that you have helped us quite a bit. My thanks to each and everyone in Jaipur Rugs and to your children. I have come to know through your conversation now that your daughter's names are Asha and Kavita and your son's name is Yogesh. I'm missing two more names, sir. You can help us know the names also. एक बेटे का नाम अर्चना, Archana, बेटे का नाम नितेश. Nitesh. Good. Now I know you. Now I know a little bit about the family सब also. कुछ आ गया. Right, sir. Right. Thank you so much. I wish on behalf of you also, all the viewers and everyone, a happy Onam, which is coming around the corner on Sunday. All of us should have a peaceful and wonderful celebration of Onam and spread the love like Nand Kishore Saab has initiated to spread love in business and in life. So with this good note, we would like to end and wish you a very happy weekend and a good night. Thank you all. Thank you, thank you, thank you, thank you.